This episode of VoiceOver पर चर्चा is powered by voicesbazaar.com, India's premium audio agency. भी नए बच्चे आते हैं, मैं उन सबसे कहती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके ना ऑब्जर्व कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि एप कीजिए। अगर आप नोबिता को गैजेट नहीं दोगे तो फिर नोबिता अपनी पढ़ाई खुद करेगा। अगर आप होमवर्क उसका उसके लिए कर दोगे तो फिर ये तो फेयर नहीं है ना। सारा दिन तुम नोबिता के घर में जाके खेलते रहते हो, दुकान कौन संभालेगा है? ये जो मेरी आवाज को लेके मेरी इजाजत के बगैर उसको इस्तेमाल करना इज अनएथिकल। तो जैसे अगर एंजेलिना जोली है, मैं उनको डब कर रही हूँ, तो वो एक तरह से हंस रही है, मुझे भी वैसे ही हंसना होगा, तभी मैं कन्विंस कर पाऊंगी ना अपने हिंदी लिसनर्स को कि भाई एंजेलिना अंग्रेजी नहीं, वो हिंदी बोल रही है। So welcome to another episode, another super special episode of VoiceOver par Charcha. In this episode, we have a multi-talented personality, a seasoned voice artist, I should say a multilingual voice artist who does voicing in 4 languages, English, Hindi, Punjabi and Urdu. As a voiceover artist, she is currently doing voiceovers for audiobooks, that's for Audible, Storytel, and she has been regularly doing voiceovers for news channels like ABP News, NDTV Prime, Discovery, NDTV 24/7, etc. As a voice actor, she has dubbed for celebrities, for example, Janhvi Kapoor, Kangana Ranaut, Madhuri Dixit, international celebrities like Angelina Jolie, Gal Gadot. Further, and she has given voice to popularly known cartoon series like Doraemon. For example, she has given voice to many characters, including Nobita's mom, Shizuka's mom, and more series like Shin-chan, and the list is too big. Further, as an actor, she has played pivotal roles in primetime shows like Ikyavan for Star Plus, Lakshman Rekha for Ant TV, and Ek Thi Rani Ek Tha Ravan for Star Bharat. So add on, overall, an anchor, former radio jockey, a podcaster, with more than 3 decades of experience in the creative space. So to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's a great honor, it's a pride, it's a privilege to have multi-talented, the seasoned voice artist Pallavi Bharti on VoiceOver पर चर्चा. So Pallavi मैम, आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है VoiceOver पर चर्चा में. थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन, और आई डोंट नो, इतना सारा मतलब वाओ, मुझे कभी कभी खुद ही शक होता है कि as I told too many USPs, तो मुझे पूरा एक है ना, I think the introduction part was also a bit challenging for this particular episode. No, but you did well, you did well. I was like, wow, बहुत सारा काम कर लिया, बहुत सारा करना है। बट सबसे पहले congratulations, this is a beautiful podcast, और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई, देखिए, voice has always been my passion, और बहुत सारा काम किया जैसा आपने बताया, पर कुछ होता है, कोई पुल है जो मुझे ना बार बार ऐसे वॉइस ओवर्स की तरफ खींच लेता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर हूँ, और आई थिंक जनवरी से हम कोशिश कर रहे थे कि हम ये करें, है ना? And finally it happened. हाँ, बट हो रहा है, and it's great. Thank you for having me. Great to have you. Well, first of all, heartiest congratulations. आपको भी एक अवार्ड मिला है for Kuku FM. थोड़ा बता सकते हो उसके बारे में? I would like my viewers and listeners to know about it. Yes, so हीर करके एक सीरीज हम कर रहे थे, so it's a very celebrated series, Kuku की. So it's a love story and I did the narrator part of it. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कुकू की, और आप सारे लिसनर्स की, कि बहुत उसकी बहुत लिसन्स आए। आई थिंक मिलियंस में लिसन्स हैं उसके, और सबने बहुत प्यार दिया। और नैरेटर सूत्रधार, मतलब वो कहानी को फिर होता है, आपको एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिशन और मूड बताना नैरेटर का काम है, और उसको बहुत प्यार मिला। तो ग्लोबली, आई थिंक ग्लोबली नहीं, इंडिया में उसको मतलब रिकग्नाइज किया, वन ऑफ द टॉप शोज माना गया हीर को, और नैरेटर के लिए मुझे अवार्ड मिला। यस, नाइस, वंडरफुल। सो coming on your journey as, you know, in terms of creative space, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपकी in the performing arts, I will not specifically use the word voice acting or voice over, आपकी शुरुआत कैसे हुई सबसे पहले? हाँ, तो हर्ष, मैं 2-2.5 साल की थी, तो मेरे आसपास का माहौल ना बड़ा फिल्मी था, क्योंकि मेरे घर में किराएदार के तौर पर मनोज बाजपेयी जी रहते थे, सौरभ शुक्ला जी रहते थे, हाँ, और मेरे बाजू वाले घर में वीरेंद्र सक्सेना जी रहते थे, सीमा बिस्वाल जी का आना जाना था, निर्मल पांडे, मतलब उस टाइम एनएसडी के जो खास लोग थे, जो मतलब टैलेंट का खजाना था जिनके पास, वो सब हमारे इर्द गिर्द रहा करते थे। तो मेरे पिताजी शुरू से थोड़ा बहुत लिखते थे, तो क्या हुआ कि एक बार वीरू अंकल ने बोला, मैं उन्हें वीरू अंकल बोलती हूँ, वीरेंद्र सक्सेना जी को,
तो उन्होंने बोला कि भाई पल्लू को ना एक ऐसे एड फिल्म है, पल्लू को शूटिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है कर लेगी। तो मैं 2-2.5 साल की थी, तो वो मेरा पहला कदम था इनटू द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग। 2-2.5 साल में? जी जी। और मैं मतलब मैं 4-5-6 साल की रही होंगी तब तक आई वाज अ नोन फेस, क्योंकि तब दूरदर्शन हुआ करता था, है ना, तो इतने लोग देखते थे। और तो आई स्टार्टेड विथ टीवी, films also I did, and then I sort of transitioned into voice acting. तो 4 साल की थी जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस एक्टर के तौर पर अप्रूव हुई। फिर मैं दूरदर्शन में अप्रूव थी ही। तो मेरी जो ट्रेनिंग है ना वो बहुत मतलब सख्त है, बहुत गाढ़ी ट्रेनिंग है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया और ये ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना सीखने का मौका उन लोगों से मिला। तो आशुतोष राणा जी, इरफान खान सर के साथ काम किया मैंने जी, और मैंने मुनमुन सेन जी के साथ, नंदिता दास जी के साथ काम किया। फिर सलमा सुल्तान जी मेरी डायरेक्टर रही कितनी सारी सीरीज में, और नसीरुद्दीन शाह जी की बेटी बनी मैं, और रजा मुराद साहब और असरानी साहब की बेटी बनी मैं एक फिल्म में। तो मतलब छोटे बचपन में मेरा इतना एक्सपोजर हो गया ना कि, और इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मैंने काम किया, है ना। तो मेरी जो ट्रेनिंग ही थी वही इतनी मतलब खालिस थी। और क्या हुआ कि वॉइस एक्टिंग जब शुरू हुई तो बचपन में ना मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। ऑल इंडिया रेडियो में ना, अब मैं छुटकू सी थी, है ना, और माइक एक ही माइक हुआ करता था, और वो माइक ना ऐसे लंबा सा माइक स्टैंड पे, मतलब वो ऊंचा सा होता था। तो मेरे को ना पटरे होते थे ऑल इंडिया रेडियो में, हमारा बड़ा सा स्टूडियो होता था। आजकल तो वो स्पेसेस ही नहीं है स्टूडियो के, पर बड़ा सा स्पेस होता था, और छोटे छोटे पटरे, छोटी छोटी चीजें रखी होती थी, प्रॉप्स, क्योंकि आजकल एसएफएक्स टेक्नोलॉजी है, आजकल तो एसएफएक्स बनाए जाते हैं, पर उन दिनों हम उसको मतलब वहीं पर उसी टाइम पे हम रिकॉर्ड कर रहे होते थे। तो एक दरवाजा होता था, प्लाई का दरवाजा बना था, उस पे कुंडियां लगी हुई थी, तो अगर कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो हम रिकॉर्ड करते करते उसको खटखटाते थे ताकि वो एसएफएक्स साथ में रिकॉर्ड इफेक्ट आ पाए। यस यस जी। और देखिए आप, कितनी मेरी ट्रेनिंग कितनी सख्त है कि अगर आप दरवाजा खटखटा रहे हैं तो आप ऐसे बोलेंगे ना, खोलो दरवाजा खोलो, तो आपकी आवाज भी उसके साथ ऐसे ऐसे आगे पीछे होगी, yes. है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते खोलो खोलो दरवाजा खोलो मैं बाहर खड़ी हूँ, नहीं, आप क्योंकि हाथ हिला रहे हैं तो आपकी आवाज भी उसी तरह से वाइब्रेट होगी। तो ये सारी बारीकियां मैंने सीखी। और जैसा मैं बता रही थी ना, बहुत सारे प्रॉप्स होते, तो पटरे पे पटरा रख के मुझे उस पर खड़ा किया जाता था ताकि मैं उस माइक पर पहुंच सकूं। आजकल मल्टीपल माइक्स होते हैं, तो एक माइक मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड होगा, एक किसी और के हिसाब से, तब एक ही माइक होता था। तो मैं मतलब ऑलमोस्ट सीढ़ी चढ़ के मैं अपने सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करती थी। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं उस टाइम के, और मैं इतनी लकी हूँ, इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ना वो दौर भी देखने को मिला, फिर ये दौर भी मैं देख रही हूँ, और आगे भी काम करेंगे। जी जी। यस, उसमें यू नो इन व्हाट ऑल दीस पॉडकास्ट मुझे बहुत एक इंटरेस्ट जागता है जब हम कभी बात करते हैं ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे दिग्गजों से जो जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। आज तो आप घर पे बैठ के भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसा आपने माइक का जिक्र किया। ऑफ कोर्स आपने 2.5 साल की उम्र, 2-2.5 साल की उम्र में शुरू किया था, तो मैं आई कैन इमेजिन कि वो माइक तक पहुंचने के लिए सो फर्दर गेटिंग इनटू, फिर आप यू आल्सो आपने आरजे एज अ रेडियो जॉकी भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, राइट? जैसे मैं बता रही हूँ आपको, मतलब मैंने सब कुछ ही किया है ना। तो उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो का ही एक रेनबो एफएम करके आज भी चल रहा है, तो वो हुआ करता था। तो जो हमारे ड्रामा के जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि पल्लवी बोल अच्छा लेती हो तुम, तलफ्फुज़ भी अच्छा। हमारा ना, मैं सबको कहती हूँ, मेरा ना एक थोड़ा सा टची हूँ मैं भाषा को लेके ना। जैसे मैं और आप अभी बैठे हैं एक स्पेस में, हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कोई भी बात करें चलता है, ठीक है ना, हमारा थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे हो चलता है। पर जब आप, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं बोलती हूँ, वॉइस एक्टर के तौर पर मैं बोल रही हूँ, मेरे टूल्स क्या है, मेरे एक्सप्रेशन है, मेरा टोन है, मेरे शब्द है। अब उन शब्दों के साथ अगर मेरी वफादारी नहीं होगी तो फिर ये तो मैं चीटिंग कर रही हूँ ना। मतलब अगर मैं जरूरत को जरूरत बोल रही हूँ, अगर तो मेरा कैरेक्टर डिमांड करता है कि भाई इस लड़की को मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसके नुक्ते साफ नहीं है,
तो मैं जरूरत बोल सकती हूँ अगर मेरे कैरेक्टर की डिमांड है। पर वैसे मुझे लगता है कि भाषा पे काम करना, जो भी एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स हैं, मैं उनको यही हमेशा बोलती हूँ, वो सोचते भी होंगे कि अरे ये भाषा लेके बैठ जाती है, बस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप अपने सारे जो टूल्स है ना उनको शार्पन रखें और उसमें भाषा आती है। तो मेरे जो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग यू, तो जो हमारे डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि तलफ़्फ़ुज़ तुम्हारा अच्छा है। और ऑल इंडिया रेडियो में ना देखिए बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, जैसे हमारे दिग्गज हुए शोभना जगदीश जी हुई हैं, सलमा सुल्तान जी हुई हैं, शमी नारंग जी हुए हैं, मतलब Yes. आप रिनी खन्ना जी हुई हैं, इनकी न्यूज रीडिंग्स आप देखिए, एक नुक्ता इधर से उधर नहीं, एक बिंदी इधर से उधर नहीं। तो इतना ज्यादा जोर दिया जाता था भाषा पे। तो उन्होंने कहा कि तुम अच्छा बोल लेती हो, प्रोनाउंसिएशन ठीक है, तो तुम आरजे भी ट्राई करो। अच्छा, पल्लवी तो खुद को बच्चा थी, तो मुझे तो मतलब सब कुछ ही ट्राई करना था, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मुझे इतना फैन मेल आती थी, इतनी फैन मेल। अच्छा, वहां पर ना कोई सेट, आजकल क्या होता है आरजे का सेट शोज दिए जाते हैं, हाँ तो उन दिनों ना कोई सेट शो नहीं होता था, मतलब ड्यूटी लगती थी। तो जैसे मेरा बॉलीवुड सेल्स करके मैं एक शो किया करती थी, कभी उसकी ड्यूटी लग गई, कभी दूसरे शो की ड्यूटी लग गई, तो अलग अलग तरह के शोज का अलग अलग एक मूड होता था, अलग अलग एक लिसनर बेस होता था, तो अलग अलग चीजें करने का मौका मिलता था। और मुझे बड़ा मजा आता था कि मेरे को फैन मेल आती है बहुत सारी, तो मुझे डांट पड़ती थी कि भाई तुम्हारी इतनी फैन मेल क्यों आती है। लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट करते थे, लोग कनेक्ट कर बहुत पाते होंगे, बहुत प्यार देते हैं। और मुझे इतनी, मेरे को एक और किस्सा याद आया, तो मैं जो आप बता रहे थे ना पॉडकास्ट करती थी दिल से विद पल्लवी, तो उसकी भी आई थिंक 2-2.5 मिलियन लिसन हो गए थे, काफी सेलिब्रेटेड था। तो हमने पहले मैंने उसको मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी एक, जिसमें लव स्टोरीज थी, जो हमारी हिस्टोरिकल लव स्टोरीज, हीर रांझा हो गया, सोनी महिवाल हो गया, तो मैं खुद लिखा करती थी और मैं खुद वॉइस ओवर करती थी, उसमें मैं गाने भी गा रही हूँ बीच में। अच्छा, आपको शायद ये नहीं पता होगा, मैं और मेरी बहनें, हमने टी सीरीज के लिए बड़े सारे कैसेट्स रिकॉर्ड किए, मतलब मैंने गाना भी नहीं छोड़ा, मैंने बहुत गाने अच्छा गाए। सिंगिंग भी करी हुई है आपने? हाँ, मतलब वो छोटे बच्चों की नर्सरी राइम्स वगैरह नहीं होती हैं, तो हमने वो भी बड़ी गाई, मतलब मैंने कुछ 20-30 कैसेट रिकॉर्ड किए होंगे, उन दिनों कैसेट रिकॉर्ड हुआ करते थे। तो खैर, ये मैं कर रही थी, तो गाना, ये पहले मैंने नीलेश पिस्ता जी के साथ, मैंने उनको ये प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की, उनके साथ मैंने काम किया, माइक करके उनका प्लेटफॉर्म था। फिर मैंने वो प्रॉपर्टी लेके गाना को दे दी, तो गाना वाज इंटरेस्टेड, गाना वाज इन टॉक्स विद मी कि भाई हम ये चाहते हैं, तो मेरी प्रॉपर्टी थी, तो मैंने वो गाना के साथ की। तो हमने एक सीजन किया, तो उसमें सारे हमारे जितनी लव स्टोरीज थी, पद्मावती और सारी लव स्टोरीज मैंने की। उसके बाद सेकंड सीजन शुरू हुआ। सेकंड सीजन में हमने रियल लाइफ लव स्टोरीज, फिक्शनल होती थी, मेरे राइटर्स लिखते थे, और खूबसूरत लव स्टोरीज। तो आप यकीन मानिए, मतलब मेरे पास डीएम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक में उन कहानियों को सुन के लोग मुझे इतना इमोशनल मैसेजेस, और वो मैं आपको बताऊं, ये जितने डीएम्स होते हैं ना, ये सब मेरे ना जैसे लव लेटर्स है, लव लेटर्स है। मैं उनको इतना छुपा के रखती हूँ ना दुनिया की नजरों से, मतलब लोग आजकल चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे सब कुछ ही बाहर आ जाए, है ना। yes. पर और स्पेशली मुझे मेरे खुद को मार्केट करना नहीं आता, और मुझे सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता, मतलब लेकिन मैं ये डीएम्स पढ़ती हूँ, तो उसमें ना एक ट्रांसजेंडर की कहानी थी। तो मेरी राइटर ने बहुत सुंदर स्टोरी लिखी थी, शिवम ने, कि वो ट्रांसजेंडर लड़की, दिल से वो लड़की है, तो वो उसको लगता है मैं नॉर्मल हूँ ना, मुझे भी प्यार, मैं हकदार हूँ प्यार की। उसको एक लड़का मिलता है, वो उसको प्यार हो जाता है उससे, और वो लड़का बजाय उसको धिक्कारने के, वो कहता है कि देखो शायद ये मुमकिन ना हो, लेकिन किसी और जन्म में मिले या कुछ। तो वो एक खूबसूरत सा मोड़ देके कहानी को बंद कर दिया गया। मुझे उस डीएम में उन्होंने बोला, वो ट्रांसजेंडर थी, उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने बोला कि मैम मुझे इतना छुआ इस कहानी ने, और मैं अभी अपने पार्टनर के साथ हूँ, शादी कर ली है, बहुत खुश हूँ, और आपकी कहानियां बहुत इंस्पायर करती हैं। और ऐसे एक लड़के का आया, वो लड़का मुझसे ऐसे कनेक्ट हो गया है, बच्चा यंग लड़का है, ही वांटेड टू एंड हिज लाइफ, तो मेरे पास मैसेजेस है जिसमें उसने लिखा है कि मैं आपकी कहानियां सुनता हूँ, मुझे इतनी पसंद आती हैं, मुझे इंस्पायर करती हैं। तो अगर एक भी जिंदगी इंस्पायर, मुझे लिखता है वो कि दीदी बोलता है मुझे, दीदी आज ना मैंने
एक गाना रिकॉर्ड किया, मुझे गाने भेजता है वो, आप सुन के बताइए दीदी कैसा है। आज मेरी मम्मी के साथ बैठ के मैंने कहानी सुनी। तो अगर आप अपने प्रोफेशन से एक भी जिंदगी को छू रहे हैं तो बहुत बहुत खूबसूरत बात है। सो एनीवेज, ये जैसा मैंने जिक्र किया एक बहुत ही खास एपिसोड है इन टर्म्स ऑफ वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग। आपने लगभग सारे जॉनरास, मतलब जो भी वॉइसिंग में जो जहाँ हम कला की बात करते हैं, आप आरजी भी रहे हैं, आप पॉडकास्टर भी रहे हैं, और साथ में आपने जैसे हमने जिक्र किया था ऑडियो बुक्स, कैरेक्टर्स, तो ये थोड़ा हम इस पे अभी और चर्चा करना चाहेंगे। In terms of your suggestions to the beginners who want to make a career in voice acting, voice over overall, how do you, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हाउ डू यू स्विच बिटवीन कैरेक्टर्स या अलग अलग जो जॉनरास होते हैं वॉइस ओवर के, वो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ऑल द बिगिनर्स, टू ऑल द बिगिनर्स? देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत सुंदर बोलते हो और जिस तरह से नो ऑनेस्ट, और जिस तरह से तुम क्वेश्चन, मतलब दिस इज अ टैलेंट है, जिस तरह से तुम क्वेश्चन पिरोते हो और सब चीजें कवर कर लेते हो, मतलब मेरे बस का नहीं है। एंड बहुत क्लैरिटी है तुम्हारी स्पीच में, मैं नोटिस कर रही थी अभी। और जिस तरह की अनाउंसमेंट्स होती हैं, करेक्ट पॉजेस टिका के बिल्कुल तलफ्फुज़, तो आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच एंड गुड जॉब यार। और आपके क्वेश्चन पे हर्षना, इसको दो भाग में अपन डिवाइड करते हैं। श्योर। तो जो पहला पार्ट है, मैं कैसे डिफरेंट वॉइसेस करती हूँ। तो बहुत बहुत फेमस है ये मेरे बारे में कि मैं, मेरी इंडस्ट्री में, और बहुत प्यार देते हैं लोग मुझे, पर ये फेमस है कि मैं 2-3 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल की बुढ़िया तक की आवाजें निकाल लेती हूँ। और मैं लड़के बच्चे की, जो टीनेज तक का होता है ना, जब आवाज आपकी फूट रही होती है, मैं वो बच्चे लड़के की भी आवाजें निकाल लेती हूँ। तो मैं ना मजाक में कभी कहती हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से ही ट्रेन किया, क्योंकि पापा ना मुझे, जब मैं बचपन में टीवी करती थी तो लड़की तो करती थी, साथ में मेरे बाल कटवा के ना मुझे लड़के का भी बहुत सारा काम करवाया है। बहुत सारे, बल्कि हाँ, एक अवार्ड विनिंग टेलीफिल्म थी हैप्पी बर्थडे करके ललित बहल जी की, तो उसमें लड़के का रोल किया मैंने, 4 साल के लड़के का, और बहुत पॉपुलर हुई, सब बहुत सराहा गया। तो माता पिता का आशीर्वाद है कि आई कैन रीच हियर। तो जैसे आजकल ना मैं रील्स देख रही थी, तो रील्स में ना आजकल एक ट्रेंड है हर्ष की, एक गाना चल रहा होगा पीछे और उस गाने की लाइनें आप लिप सिंक कर रहे हैं और अलग अलग ऊपर ऐसे एंग्री एक्सप्रेशन लिखा होगा, फ्रस्ट्रेटेड लिखा होगा, फ्लर्टी लिखा होगा, और आप उस लिरिक्स के साथ साथ आप मूड बदल रहे हैं। तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि कोई लाइन लेते हैं, हर्ष मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो, ये लाइन लेते हैं और इसको हम ब्रेक डाउन है हमारा इमोशन। तो मैं आपसे कहूंगी कि मैं उन कैरेक्टर्स को अपने अंदर टटोलूंगी, तो मैं बोल सकती हूँ, हर्ष ये मुझसे नहीं होगा, हर्ष ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। कितने तरह के, कितना एक्सप्रेशन है, तो ये है परफॉर्मेंस। ना इंस्टेंट आपके अंदर वो आ जाता है एक्सप्रेशन, वो चीज में जी। तो एक तरह से एक लाइन को पढ़ देना काफी नहीं है एज अ परफॉर्मर। मैं कहती हूँ ना, आपको सबसे कहती हूँ, जो भी नए बच्चे आते हैं, मैं उन सबसे कहती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके ना ऑब्जर्व कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि एप कीजिए। मैं अचानक से एक दिन उठ के हर्ष की तरह बोलने लग जाऊं और मैं अपनी आवाज को भारी करके मैं हर लाइन ऐसे बोलूं, या मैं सेल्फी हाय व्हाट्सअप ऐसे बोलूं, पर मुझे वो सारे कैरेक्टर्स याद रहने चाहिए, तो मैं परफॉर्मर हूँ। अब अलग अलग जो आवाज का बेसिक टोन आपकी वही रहती है। बहुत गिफ्टेड वो लोग होते हैं जो अपनी पूरी टोन ही, निनाद जी जैसे, शशि जी जैसे, बाबला जी जैसे, मतलब पूरी टोन ही बदल देते हैं, है ना।
पर अब जैसे मैं एक सीरीज कर रही हूँ, पता नहीं मैं इसका नाम ले सकती हूँ कि नहीं, काफी मतलब उसको प्यार मिल रहा है और उसमें जितनी फीमेल कैरेक्टर्स होती है ना वो सारी मैं कर रही होती हूँ। मजा तब आता है। देखिए डबिंग ना, मुझे लगता है डबिंग थोड़ा सा बोरिंग क्राफ्ट लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि डबिंग में ना आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मेरे पॉजेज मेरे नहीं होते, मेरा हंसना मेरा नहीं होता, मेरा स्ट्रेस मेरा नहीं होता, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन पे कैरेक्टर है मैं वो बन जाती हूँ। तो जैसे अगर एंजेलिना जोली है, मैं उनको डब कर रही हूँ, तो वो एक तरह से हंस रही है, मुझे भी वैसे ही हंसना होगा, तभी मैं कन्विंस कर पाऊंगी ना अपने हिंदी लिसनर्स को कि भाई एंजेलिना अंग्रेजी नहीं, वो हिंदी बोल रही है। हिंदी तो बोल रही मुझे है, yes. उनका एक उनका लिप मूवमेंट, एक उनका हैंड जेस्चर मुझे मैच करना है। तो मैं एज एन एक्टर मैं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। उसके भी अपने मजे हैं, मतलब वॉइस सिंक करना वो अपने आप में बड़ा मजेदार है वो। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा बोर कर देता है कभी कभी। तो जैसे अब ये जो सीरीज में करी जिसमें 5 कैरेक्टर्स, मजा तब आता है जब वो 5 एक साथ आ जाते हैं, यू नो। तो अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने किसी कैरेक्टर को जैसे एक तरह की आवाज दी, जैसे किसी कैरेक्टर को मैंने थोड़ा सा ऐसे आवाज दी कि हर्ष मैं सोच रही थी कि अगर ये करना है तो ये कैसे करना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना मुझे पीछे से बहुत डांट पड़ने वाली है। तो दूसरा कैरेक्टर बोलेगा तो तुम्हें और करना भी क्या आता है, मतलब अगर तुम ये नहीं करोगी तो फिर तुम और क्या करोगी, कोई और करियर ऑप्शन है? अब एक लड़की है थोड़ा यू नो अप मार्केट, अपना साउथ दिल्ली, आई नो बट दैट्स सो बैड, मतलब ऑप्शन तो होने चाहिए ना, मतलब है ना। तो 4-5 तरह की आवाजें मिला के आप कर दो। तो अगर कोई जानता है कि ये पल्लवी, मतलब बहुत से लोग पहचानते हैं, तो उनको पकड़ में आ जाएगा पल्लवी सारे कैरेक्टर्स करे। पर अगर जो हमारा नॉर्मल लिसनर बेस है वो नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, तो आपको मैनरिज्म चेंज करने हैं, थोड़ा स्टाइल के। हो सकता है कोई हंस रहा हो तो वो ऐसे करके हंस रहा हो, यू नो, कोई इसमें आपने एक बात बहुत सही बोली कि जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑब्जर्व करना, लुक अराउंड योरसेल्फ। जैसे एक तो चीज हो गई मिमिक्री, उसको साइड में रखते हैं। मिमिक्री इज अ डिफरेंट थिंग। एक होता है इम्पर्सनेशन, जिसको मैं कह सकता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, कि जैसे अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग किरदार होते हैं, हम वी आर सराउंडेड बाय कैरेक्टर्स, हमारे चाहे फैमिली हो, बाहर जाते हैं, तो उनके हाव भाव करके उसको फिर कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स काम ही आता है वो। हम अगर एक बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन इज द की फॉर अ गुड परफॉर्मर। आई थिंक हमारे जितने टैलेंट और मिमिक्रीज, ये जो मिमिक्री आर्टिस्ट है, मतलब हैट्स ऑफ टू देम, क्या वो पकड़ते हैं नब्ज। मतलब मैंने कंगना के लिए एक फिल्म डब की थी। अच्छा, हमने इंग्लिश उल्टा किया था, हमने तनु और मनु, मैंने कंगना के लिए डब की थी। तो मैं इंग्लिश में उनके डायलॉग बोल रही थी हिंदी फिल्म में। तो वो ऐसे बोलते हैं और अपना ऐसे हाथ छोड़ती हैं, ऐसे ही बात करती हैं। तो उनका थोड़ा सा नेजल आता है, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा लिप्स में ऐसे ऐसे टच करके बात करती हैं। तो यू नो मैं वो पकड़ सकती हूँ, उनके मैनरिज्म पकड़ सकती हूँ। फारा का आवाज थोड़ा बोल दिया और यू आर नॉट कमिंग टू माय प्लेस व्हाट या, यू नो, सो आई कैन कैच दोस। वो ऑब्जर्वेशन से ही आता है। मैं अचानक से फारा बन नहीं जाऊंगी, पर मैं उनकी छोटी छोटी चीजें कैच कर सकती हूँ ऑब्जर्वेशन के दम पर। हाव भाव हो गए, थोड़ा जो उतार चढ़ाव होता है। एनी ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर्स इन कार्टून, स्पेशली डोरेमोन सीरीज, जो आप हमेशा, जिसको ऑफ कोर्स लोग भी याद करते हैं, आपको हमेशा जिसके लिए सराहा गया, थोड़ा आप अगर करके बता। डोरेमोन और शिनचैन। तो शिनचैन में जब शुरू हुए थे ये दोनों, तभी ये दोनों आ गए थे मेरी किटी में, और यूटीवी हुआ करता था, हम उसके लिए करते थे इसको डब। तो मेरे ब्रिलियंट डायरेक्टर्स थे, मतलब देव भाई मेरे बहुत फेवरेट, उनसे ही मैंने डबिंग की बारीकियां सीखी हैं। तो डोरेमोन में आपको पता है, सबको पता है, मैं 4-5 कैरेक्टर्स किया करती थी। और शिनचैन में उनकी माँ करती थी शिनचैन की, और उनकी छोटी जो बोल भी नहीं पाती थी उनकी बहन करती थी। तो डोरेमी का कैरेक्टर मुझे बड़ा क्यूट लगता था, मतलब उनकी पतली सी आवाज। डोरेमोन भैया, अगर आप मुझे एक बात बता, अगर आप नोबिता को गैजेट नहीं दोगे तो नोबिता अपनी पढ़ाई खुद करेगा, अगर आप होमवर्क उसका उसके लिए कर दोगे तो फिर ये तो फेयर नहीं है ना। तो जियान की माँ, सारा दिन तुम नोबिता के घर में जाके खेलते रहते हो, दुकान कौन संभालेगा है? मैंने शिजुका से बात की है, अगर वो कहेगी तो मैं तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे लिए कर दूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ठीक नहीं है नोबिता। यू नो, सो डिफरेंट कैरेक्टर्स उनका। ये तो जैसे
आपने वॉइस एक्टिंग का जिक्र किया, कहीं पे तो जैसे कैरेक्टर्स में कोई रेफरेंस नहीं होता, जैसे आपने जिक्र किया डबिंग में तो हम उस कैरेक्टर के हिसाब से हमें उसको इसको एक हिसाब से उसको लैंग्वेज रिप्लेसमेंट कह सकते हैं कि हम अपने उसी भाषा में हम उसको लेके आ रहे हैं। बट अबाउट जैसा मैं जानता हूँ एडवर्टाइजिंग एक अलग ही टोन होता है जो बिल्कुल डबिंग और मतलब ठीक है, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ वॉइसिंग, बट कहीं थोड़ा अलग होता है, इससे अलग डायरेक्शन में जाता है। वो आप कैसे अलग अलग उसमें जॉनरास में करते हैं? जैसे डॉक्यूमेंट्री का भी आप करते हैं, यू आर गिविंग वॉइस फॉर न्यूज चैनल्स फॉर एडवर्टाइजिंग, वो अगर थोड़ा हम और उस पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं चर्चा। क्या होता है ना कि मैं ना एक बहुत मतलब फनी है, पर अब आप सब्जी खरीदने जाते हैं कभी? हाँ, मतलब घर वालों के साथ दे देते हैं, मतलब उनको भी जरूरत होती है वैसे चले जाते तो आप देखिए वो ना आपके आगे एक टोकरी सी सरका देगा, सब्जी लेने जाए आप 2 किलो आलू, तो उसका हाथ इतना सधा होता है ना हर्ष, आप 2 किलो आलू उसमें छाट छाट के भरेंगे, वो या तो कम रह जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। वो जब आलू डालता है ना उसमें और वो तोलता है, वो 2 किलो निकलेंगे बस, हाँ। आधे से ज्यादा। तो इतना टाइम कर करके उसका हाथ सध गया। ऐसी जब कोई स्क्रिप्ट हमारे हाथ में आती है ना, तो उसको देख के जैसे डॉक्टर नब्ज पकड़ के पहचान जाता ना, ऐसे ही उसको देख के, इतना रियाज इतने सालों का, उसको देख के आप समझ जाते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं ना मदर डेयरी के लिए बहुत काम करती हूँ। तो मदर डेयरी का ब्रीफ होता है, ऑब्वियसली माँ बोल रही है, हाँ। एक माँ अपने बच्चे से बात कर रही है, या एक माँ एक दूसरी अपनी सहेली माँ को बता रही है। तो द टोन ऑब्वियसली विल बी मदर लाइक। जैसे मेरी माँ मुझसे बात करती है तो वो वार्मथ होगी, वो बहुत मंझा हुआ वॉइस ओवर नहीं होगा, क्योंकि वो एक माँ दूसरी माँ को बता रही है। तो जैसे हम लोग ब्रेकिंग बैड डब कर रहे थे, स्काइलर वाइट का कैरेक्टर मैंने किया, बाबला जी के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे थे। उन्होंने जिक्र, हाँ, यस पिछले। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कई बार क्या होता है ना हर्ष कि आप नहीं होते उस मूड में, कई बार नहीं होता है मन, कई बार बुखार है, कई बार जुकाम है, नहीं मन है, कई बार लड़ाई हो गई किसी से, पर आपका सामने वाला जिस तरह से परफॉर्म करता है ना, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, जिस तरह से बाबला जी परफॉर्म करते हैं आपको वो मजबूर कर देते हैं। बाबला जी को मैंने बोला, आप मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं चाहे किस भी जोन में हूँ, मैं निकल के आऊँ और मैं आपके साथ परफॉर्म करूँ। मतलब मेरा एक 100% एक हिस्सा मुझे देना पड़ता है ताकि वो सीन ऊपर उठ के आए। स्काइलर वाइट, पल्लवी ने आवाज की है, स्काइलर वाइट की वजह से सीन दब ना जाए। आपने जब शुरुआत की थी, वो एक हिसाब से कैसेट सीडी का जमाना था, देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लिमिटेशंस थी। अब तो इंटरनेट आ गया है और काफी चीजें मतलब कन्वीनियंस हो गई हर चीज में टेक्नोलॉजी वाइज, या आप जैसे काम किसी को भेजते हैं, आप ईमेल के जरिए आप भेज सकते हैं। पिछले वाला भी एपिसोड भी रिलीज नहीं हुआ बाबला सर का, तो वो भी कहते हैं कि इंटरनेट के आने से वो दोनों काम सर साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, एक्टिंग एंड वॉइसिंग पैरेलली। अब इंटरनेट ने एक और चीज को जन्म दिया है, दैट इज डिजिटल जो स्पेस है, उसने एक और चीज को और एक और चीज का ओरिजिन हुआ है, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो हर जगह दस्तक दे चुका है। कोई ऐसी जगह नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, एआई टूल्स आ गए हैं, क्लोनिंग होती है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं वॉइसिंग के हिसाब से? बहुत वैलिड, बहुत अच्छा सवाल है हर्ष। क्या है ना कि टेक्नोलॉजी देखिए एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि देखिए एआई इज कमिंग, इट्स हियर एंड देयर इज नो स्टॉपिंग इट, देयर इज एब्सोल्युटली नो स्टॉपिंग इट। आना तो है, आ ही चुका है, आ चुका है। हाँ, तो एम्ब्रेस करें। और जिस वक्त मैं कोविड में घर बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी, मेरा धंधा बंद नहीं हुआ था, तब तो मैंने कंप्लेन नहीं की कि भाई टेक्नोलॉजी, एआई और ये सब, तब तो मैं ठीक थी, मेरा सब ठीक चल रहा था। अब मेरे पेट पे लात पड़ी है तो जी मैं कह दूं कि ये गलत है, ये दिस इज नॉट राइट ऑन माय पाथ। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो मेरी आवाज को लेके मेरी इजाजत के बगैर उसको इस्तेमाल करना इज अनएथिकल। सैडली अभी कोई ऐसे लॉज नहीं है, ना सिर्फ इंडिया में, आई थिंक ग्लोबली ऐसा कोई लॉ नहीं है कि मैं अपनी आवाज को पैटेंट करवा सकूं।
और मेरी इतना ही थी, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मेरी आवाज, तो उसका अगर पैटेंट होता है, I think all over the world, the artist community, voice actors should, even actors, मतलब सारे तरह के आर्टिस्ट, देखिए ना आजकल अरिजीत जी की वॉइस क्लोनिंग हो रही है। हाँ, सिंगर्स के अलग अलग। हाँ, रफी साहब की आवाज लगा देते हैं अरिजीत जी के गानों पे। हाँ, तो मतलब सारी कम्युनिटी, मुझे ऐसा लगता है हर्ष की साथ आनी चाहिए, एक अपने आईपी के लिए तो फाइट करनी बनती है। तो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी अपनी है, मैं अपना वॉइस पैटेंट करवा सकूं, ऐसा कुछ मेरे पास हक होना चाहिए ताकि ये जो यूसेज है अनएथिकल, इसको रोका जा सके। अब कुछ आर्टिस्ट के जैसे रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे मैं एडल्ट कंटेंट नहीं करती, तो अब वो कल को कोई मेरी आवाज, मेरा इतना सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, 30 सेकंड ही तो चाहिए आपको आपकी आवाज के, है, तो कोई उठा के वहां लगा दे, दैट वायलेशन। आप आई विल फील चीटेड, यू नो। कैसे कर सकते हैं जब मैं पूरी जिंदगी एक एथिक्स मैंने फॉलो किया, एक रूल बनाया लाइफ का, तो उसके लिए कानून को कुछ करना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है कि मेरा ये भी मानना है कि हर एक हुनर का ना, हर एक नए प्रोफेशन की एक उम्र होती है। तो बचपन से शुरुआत होती है, तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, फिर वो जवानी की दहलीज पे आके पीक होता है, मतलब वॉइस ओवर का बूम था, फिर वो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ आके फिर वो शांत हो जाता है। तो ऐसा ही चल रहा है अभी। एआई से आई एम श्योर हमें काफी फायदे भी होंगे, हो रहे हैं। ऑटो ट्यून देखिए ना, आप कई सिंगर्स हैं जो ऑटो ट्यून के हिसाब से मतलब कहाँ पहुंच गए हैं ना। कई बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, वो भी ऑटो ट्यून इस्तेमाल करते हैं। मेरी आवाज के हाइज एंड लोज फ्लक्चुएट किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन यू नो आपके प्लगइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यस जी, एब्सोल्युटली। और मुझे ऐसा लगता है, अब मैं आपको एक बात, मैं और मेरा एक दोस्त है अभी, हम लोग ना जैसे नॉन टूरिस्टी चीजें करते हैं हर्ष, तो हम ना किसी गांव में चले जाएंगे, गांव वालों के साथ बैठ के खाना खाएंगे, जहाँ भी ज्यादा भीड़ ना, मैंने कहा ना मैं शोर नहीं मुझसे बर्दाश्त होता है, जहाँ अकेले हो, किसी ऐसे पहाड़ पे जाएंगे जहाँ कोई नहीं होगा, तो हम वहां बैठ के पहाड़ियों के साथ खाना खाएंगे, उनके साथ आग सेकेंगे, ऐसी हरकतें करती हूँ मैं। तो मैं ना एक ऐसे राजस्थान के एक छोटे से गांव में, मुझे पता चला यहाँ पे फैमिली कालीन बनाती है हाथ से, तो मैं वहां पहुंच गई। तो वहां पे एक यंग सी लड़की थी, उसको बोला, जो कारीगर थे उन्होंने बोला कि जा चाय बना ला दीदी के। तो कह रही दीदी को हम जानते हैं। तो बोला दीदी को तुम कैसे जानते? कह नहीं जानते हैं, देखा है दीदी को, टीवी पे देखा है हमने। तो शर्मा शर्मा के बोल रही थी गठरी बन के। तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से देखिए मैं उस गांव में पहुंच गई, टीवी पे उसने मुझे देख लिया, यू नो। तो मेरी तो जान पहचान निकल आई वहां पे एक तरह से। और मैं ना, मुझे इतना फैसिनेट किया, मैंने काफी कुछ रिकॉर्ड किया। वो कालीन बना रहे थे अपने हाथ से, पूरी इतने सालों की मेहनत, इतने दिनों में एक कालीन, महीनों में एक कालीन तैयार होता है। अब मशीनों से कालीन बन रहे हैं, यू नो, प्रोडक्शन तेज हो गया। यस। तो अब मेरा हुनर देखे ना, मेरे हुनर की भी तो एक उम्र है। अब उनका इतना सुंदर, उनकी कला, जब उसके सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, तो फिर मेरा भी एक वो है। तो मुझे लगता है कि देखिए इट्स अ मिक्स्ड थिंग, अच्छा भी है, गलत भी है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल अगर हो एआई का, तो देन नथिंग लाइक इट। यार मुझे लगता है टेक्नोलॉजी हमें ना आपस में थोड़ा दूर कर रही है। ये इंटरव्यू आप और मैं अहमदाबाद में बैठ के कर सकते थे, सोचिए। आप मुझे थोड़े यस बताइए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ह्यूमन कांटेक्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है। पर ठीक है, अपने फायदे अपने नुकसान। नहीं, क्योंकि जैसा आपने कहा, मतलब मैंने काफी पिछले जो इंटरव्यूज हुए हैं, पॉडकास्ट हुए हैं, तो उसमें ये बात विजय विक्रम सर ने भी कही थी कि आपकी कोई भी ऐसी स्किल है, आपको नहीं पता वो कब ऑब्सोलीट हो जाएगी। मतलब वो डिपेंड्स, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। लोग जैसे शुरुआत में कह रहे थे, 1-2 साल पहले बात होती थी कि ये तो रोबोटिक लग रहा है, लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह रोबोटिक है। इसमें थोड़े बहुत इमोशंस आ गए हैं। अरे हाँ, आई एम सॉरी, मैंने अभी एक क्लिप देखी थी जिसको अलग अलग भाषाओं में डब किया जा रहा था, तो वो सिस्की भी ले रहा है यार, यार सिस्की डब कर रहा है।
तो बहुत ज्यादा अच्छा। अभी मुझे मुझे इससे याद आया, एक वॉइस ओवर आया मेरे पास। तो वो वॉइस ओवर एआई से हो गया था, क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया एआई से। जो इनकी दरारी फंसी वो फंसी स्त्री शब्द पे। अंग्रेजी का वॉइस ओवर था, अब वो एआई स्त्री नहीं बोल पा रहा था। तो जो हमारे सरकारी एवीज होते हैं ना, तो उसमें वो कोई तो लाभकारी कोई योजना होगी, जैसे अपना ग्रामीण योजना कोई था, ऐसी कोई स्त्री सशक्तिकरण नहीं बोल पाया एआई। तो वहां पे आ गई पल्लवी वहां पे मेरा फायदा हुआ कि एआई पे मैंने विजय पाई। तो पर देखिए, लाइक आई सेड, एआई सीख जाएगी, मतलब बहुत तेज है। तेज बच्चा है एआई। कोई एआई वॉइस बनाने वाला अगर इस इंटरव्यू को सुन लेगा तो उसको यहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा कि जो शब्द बोलते बोलते जीभ टेढ़ी हो जाती है ना, तो वो एआई को उसकी प्रैक्टिस कराओ। हीरा मंडी आ गई अभी ना, हीरा मंडी में वो कह रही है कि मतलब इतना खूबसूरत सेटअप, इतना कॉस्ट्यूम सुंदर, क्या अदाकाराएं और क्या अदाकार, मतलब और क्या डायरेक्शन, क्या संगीत। वो तो संजय लीला। यस, बट भाषा, हर्ष, भाषा। जो हमारी मेन एक्टर है वो स्क्रीन पर खड़ी होकर, मुझे ठीक से लाइन याद नहीं है, पर वो कह रही है कि तुमने खाना खत्म नहीं किया, अपना खाना खा के खत्म करो। सिर्फ खत्म शब्द में नुक्ता है और कहीं नुक्ता नहीं है। उन्होंने खाने में भी और खा के भी सब जगह। आप उर्दू कैरेक्टर, आपकी जबान है, पर आपको इस पर काम करना चाहिए था। वो ना जैसे चावल खाते खाते किड़किड़ी आ जाती है ना जबान के नीचे, वो लगता है। और इतने बड़े स्केल पे ना इन सब। मैं ना श्रेया जी का एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा लता जी को किसी ने बोल दिया यार सब कुछ बहुत अच्छा है, टिका के सुर लगाती हो तुम, कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा उर्दू में हाथ तंग है। लता जी ने डिक्शन का बंदा रखा, लता जी ने उर्दू पे काम किया। अरे मजाल है जो उनका एक नुक्ता गाने में, उनको क्या करना है यार, वो लता जी है। लता जी अगर खराब भी बोलेंगी ना, खराब को, तो भी जनता सुनेगी। वो लता जी है, पर वो खराब बोलती थी। क्या मतलब, उनको गायकी में जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने उस पर काम किया, यस, वो लता जी है। व्हाट आई एम सेइंग। तो ये क्राफ्ट की बारीकियां होती है, यही आपको वो बनाता है जो आप फिर बनते हैं दुनिया के सामने। आपकी शिद्दत, आपकी वफादारी। तो जितने न्यू कमर्स है, मैं उनको ये कहूंगी कि देखिए थोड़ा रिस्की क्राफ्ट है। अब इस वक्त आपको आना है, आप कुछ और ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के अचानक से नहीं आ जाए, क्योंकि देखिए बहुत कंपटीशन है और अब तो हमारा कंपेटिटर एआई भी हो गया। ये जायज नहीं रहेगा एज अ सीनियर वॉइस एक्टर कि मैं कहूँ कि जी छोड़िए सब कुछ और तुरंत ही कूद जाइए, नहीं। और इसमें वक्त लगता है। मतलब मेरे पास डीएम्स आते हैं, मैम मुझे भी वॉइस एक्टर बनना है। मैं क्या बताऊं कि देखिए सिर्फ बोलना नहीं है हर सब कुछ, इसके पीछे सालों की मेहनत है, तपस्या है। मैंने सीखा है। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाह रही हूँ, पर मैं ये भी नहीं कहना चाह रही हूँ कि हलवा समझ के आ जाए। बहुत मेहनत है। ये एक बहुत ऐसा परत दर परत इस क्राफ्ट में, जैसे प्याज छिलता है ना, वैसा है। हर परत पे कुछ नया सीखने को, और ये हर क्राफ्ट में, सिर्फ मेरे क्राफ्ट पे नहीं है, हर चीज में। तो हाँ, और मेरा ये मानना है कि नए बच्चों को टोन डेफ नहीं होना है। मैं कुछ लोगों को सिखा रही थी, मैं उनको बता रही हूँ कि आपका सेंटेंस इस तरह से गिर रहा है, हर बार ऐसे गिर रहा है, मुझे सेंटेंस की जो तेल है उसको उठा के छोड़िए, गिराइए मत। वो हर बार, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा। तो आप मुझे बताइए, ऐसा व्यक्ति वॉइस एक्टर कैसे बनेगा जब वो डायरेक्टर के कमांड ही फॉलो, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी तो इनफैक्ट जैसा आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि कंपटीशन भी है, एआई भी है, तो यहाँ तो मतलब होता है ना, यू हैव टू रीच द क्रीम ऑफ इट, लाइक कि आपको इस क्राफ्ट को अब सिर्फ है ना, मैं कहूँगा बेस्ट होना ही काफी नहीं है, एक्सेप्शनल, कि आप जो कर सकते हो वो मतलब कोई एआई भी नहीं पकड़ पाए इस चीज को। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। तभी आप पार पाएंगे ना उससे। मतलब मेरा कंपटीशन अगर एआई है, तो आप सोचे मैं क्या और निकालूं अपने अंदर से कि मैं एआई से भी 2 कदम आगे हूँ। सोचिए, तो काफी। और
देखिए सिर्फ इक्विपमेंट ले लेना या माइक ले लेना, एक साउंड प्रूफ रूम होना आपका पैमाना एज एन आर्टिस्ट तय नहीं करता है। आप हाँ। कितने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। और कोई भी भाषा, मैं तो कहती हूँ रीजनल कोई भी भाषा आपकी हो, पर भाषा पर पकड़ अच्छी हो और ऑब्जर्व करने की जो ताकत है ना, वो इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग होनी चाहिए आपके अंदर, तो मतलब आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, फिर कोई नहीं पकड़ सकता फिर आपको। पहले क्या जमाना था ना, आज की पहले सुरीली आवाजें, मीठी आवाजें सोचती ठीक है फिर आप वॉइस एक्टर बन सकते हैं, भारी आवाज बैरिटोन है आप वॉइस एक्टर बन सकते हैं। अब हर तरह की आवाज के लिए मार्केट है, हर तरह की, मतलब जितनी अतरंगी आवाज होगी ना हर्ष, उतना ज्यादा वो डिमांड। अब विजय राज जी की आवाज क्या चमकती है, मतलब है ना, पीयूष मिश्रा जी की आवाज, वीरू अंकल, मेरे को कितने लोग पूछते तुम वीरू अंकल के इतने करीब हो, भैया हमें एक वॉइस ओवर करवाना है। तो वीरू अंकल की आवाज आप सुने, अलग सी आवाज है उनकी, पर क्या मतलब क्या डिमांड है उसकी। तो हर तरह की आवाजों के लिए है काम, बस वही है कि थोड़ा तराशना, मेहनत, तपस्या काम। तो मेरे को हाँ एग्जैक्टली। हमने कितनी सारी मतलब अलग अलग देशों की, हमने टर्किश सीरीज डब की है, हमने जापानीज की, बहुत सारी भाषाओं की। मतलब कई बार क्या होता है ना, ट्रांसलेशन ही अतरंगी आती है, तो हमें मूड और एक्सप्रेशन और पिछली स्टोरी को समझते हुए फिर हम सीन खुद बनाते हैं वॉइस एक्टर्स और डायरेक्टर्स मिलके, क्योंकि वो अतरंगी से कुछ लिख के आ जाती है स्क्रिप्ट में। कितनी बार हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं खुद से, 99% ऑफ द टाइम्स हम लाइनें खुद लिखते हैं। राइट तो इसमें मुझे एक और चीज पूछनी थी, तो आपका जैसे इन टर्म्स ऑफ वॉइस एक्टिंग, तो एक जैसे एक पर्सनल क्वेश्चन, आपका अप डाउन होते रहता है दिल्ली मुंबई उस हिसाब से, या अभी ज्यादा दिल्ली से ही काम रिकॉर्डिंग का होता है? तो देखिए like I said, I started with TV, then I pivoted into voice acting. Right now I'm levitating between TV and voice. Voice ना हर्ष मुझे इतना TV, मुझे ना, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ और नजर ना लगे, मतलब मुझे हर महीने ना मुझे कोई ना कोई एक टीवी ऑफर आता है। तो मैं ना होम बर्ड हूँ, मुझे फैमिली से बड़ा, मुझे किंग अंकल ऑफर हुई थी, उस वक्त मुझे बॉम्बे जाना था, जैकी श्रॉफ की फिल्म ऑफर हुई थी। तो मेरे पिताजी ने कहा अभी तो पढ़ाई करी, उन दिनों एग्जाम्स थे, तो वो हमने मना हो गई। पर उसके बाद फिर मैंने बैंडेड क्वीन की, मैंने और फिल्म की, इलेक्ट्रिक मून की। बट उस टाइम अगर मैं बॉम्बे निकल गई होती किंग अंकल के टाइम पे, तो फिर मैं पढ़ाई लिखाई ये सब नहीं हो पाता, क्योंकि फिर मैं काम ही कर रही होती। तो हालांकि जब मैं छोटी थी ना, जब मैं टीवी कर रही थी यहाँ पर भी, तो भी मैं एग्जाम सुबह देने जाती थी। अच्छा उन दिनों ना क्या होता था, ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, रात को शूटिंग होती थी, पता है क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। बूम माइक पे हमारा रिकॉर्डिंग होती थी। तब उन दिनों डबिंग वबिंग नहीं होता था, पोस्ट प्रोडक्शन में डबिंग नहीं होता था, सिंग नहीं करते थे, लाइव रिकॉर्डिंग होता था। तो बूम माइक होता था ऊपर, तो रात को मतलब आप लगाएं 12 बजे से अब हम 4-5 बजे सुबह तक शूट कर रहे होते थे, क्योंकि आवाजें कम होती थी, ट्रैफिक नहीं होता था, लोग जाग नहीं रहे होते थे, तो साउंड ठीक आ जाता था। अच्छा राइट। हाँ, और फिर 4-5 बजे की शिफ्ट खत्म करने के बाद मैं स्कूल जा रही थी, अपना एग्जाम देती थी। इतना मैंने मेहनत की है, मतलब तो पता नहीं कैसे। अब मुझे कोई बोलेगा तो होंगी भैया। अब वॉइस के प्रति मैं इसलिए थोड़ी सी बायस हूँ, क्योंकि ना मुझे शुरू से बड़ा ऐसा फैसिनेटिंग लगता था हर्ष की, यार क्या है ना, मतलब आप बस, आपका क्या सहारा है? बस आवाज ही तो है, आवाज के थ्रू आपको लोग जान रहे हैं, आवाज से ही आपको सब कुछ करना है। एज एन एक्टर मेरे पास बहुत टूल्स हैं, विजुअल मीडियम का एक्टर होने में। मेरे पास प्रॉप्स हैं, मेरे पास गहने हैं। अगर मैं एक सुंदर लड़की का किरदार कर रही हूँ, तो मैं मेकअप एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर मैं ऑडियो पे एक सुंदर लड़की पोर्ट्रे कर रही हूँ, तो मेरी आवाज में वो खनक होगी, वो नजाकत होगी, वो शर्माना होगा, वो सब मैं आवाज से ही कर रही हूँ, और कोई टूल ही नहीं है मेरे पास। तो वो मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगता है, इसलिए वॉइस के प्रति ना मेरी थोड़ी वफादारी ज्यादा है। राइट, ग्रेट टू नो।
So, ma'am, it was great to have you on this show. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके and knowing about your journey, about your perspective on AI, about your different अलग-अलग तरह के जो किरदार आपने portray किए, in terms of variation, your suggestion to beginners. Overall, it was a great episode. और जैसे अभी हमारी मुलाकात ऑनलाइन हो रही है, कभी मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई इवेंट पे, जैसे वॉइसिंग के इवेंट्स होते हैं, मैं इंडिया वॉइस फेस्ट में शायद आप पिछली बार में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू नो पिछली बार आई वाज़न्ट देयर, थोड़ा फैमिली सिचुएशंस, और पर मुझे अवार्ड मिला एक बार इंडिया वॉइस फेस्ट से एज बेस्ट क्रिएटिव जॉनरा में, आई थिंक डिजिटल क्रिएटिव जॉनरा में, आई थिंक सिलेक्ट सिटी वॉक यस आपको तो बहुत सुंदर, दर्पण जी का इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब मुझे ना लगता है कि मेरा क्राफ्ट फेसलेस क्राफ्ट है। अब मुझे लोग थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि टीवी का मेरा मीडियम है, पर जो लोग टीवी के थ्रू या जिन लोगों ने डिजिटल दुनिया में अपनी प्रेजेंस नहीं बनाई है, उन लोगों का बस आवाज से ही तो जाना जाता है ना। तो मुझे लगता है कि दर्पण जी और तुम, दर्पण जी, बहुत सारे लोग अभी हमारे फेसलेस क्राफ्ट को फेस दे रहे हैं। तो मैंने उनसे भी कहा था कि हमारी जो दुनिया है ना, वो पॉप फिल्टर, माइक्रोफोन, हेडफोन के पीछे छुप जाता है हमारा चेहरा, तो उसको आप सामने ला रहे हैं, तो बहुत सुंदर चीज है ये। एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, टू दर्पण जी, टू एवरीबॉडी, बिकॉज what a brilliant initiative. Seriously, and मतलब अभी आप जैसे दर्पण सर का जिक्र कर रहे थे, उनका मुझे याद है इंडिया वॉइस फेस्ट 2023 के लॉन्च होने से एक दिन पहले मेरा उनके साथ पॉडकास्ट हुआ था। अच्छा, हाँ, मैंने भी शायद अगस्त से सर से बातचीत चल रही थी, बट सर का स्केड्यूल है, सर जैसे ट्रैवल भी करते रहते, तो मुझे अभी याद आ रहा था। एंड एज आई सेड, लेट्स सी, अगर कभी आपसे इन पर्सन मिलना हो पाए, कभी दिल्ली या मुंबई में, जिस तरह से इवेंट्स होते रहते हैं, कभी होते हैं, तो इट विल बी ग्रेट। एंड ओवरऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम इसी तरह आपको सुनते रहें, और इन टर्म्स ऑफ योर वॉइसिंग क्राफ्ट, योर एवरीथिंग, जो आपका पॉडकास्ट भी है, लेट्स सी, अगर आपको वक्त मिलता है तो जरूर आप इस पे भी कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच हर्ष, मुझे खुद बहुत खुशी हुई। जनवरी से लेकर अब तक का इंतजार सफल हुआ, मतलब आई एम सो ग्लैड वी हैव दिस चैट, एंड ऑल द बेस्ट टू यू डार्लिंग। मुझे बाबला जी के एपिसोड का इंतजार रहेगा, यू इंटरव्यूड हिम रिसेंटली। यस, वो भी शायद मुझे लग रहा है अगले हफ्ते तक रिलीज हो जाएगा। Done. Thank you so much. We'll meet again soon. Sure. Lots of love to you. Thank you so much.